अच्छा, Yes, समझ में आ understood, गया sir. न्यूमेरिकल वाला पार्ट? Yes, sir. Understood. अंडरस्टूड Yeah. ना? ओके, Yes, ठीक sir. है, Yes, sir. चलिए। सो विल स्टार्ट। देखिए, उसी का एक्सटेंशन है आज का लेक्चर। देयर इज नो न्यू टॉपिक्स फॉर टुडे। वो हमने सैटरडे का लेक्चर इस वजह से लिया था कि आज हमको थोड़ा सा शॉर्ट करना है, ठीक है? सो जस्ट गिव मी अ सेकंड, वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चंस, ओके? There are few questions in NCERT, and these questions are also very important, I would say. Okay, chaliye. An easy question. If you have did the last classes questions, then it will be this one will be easier. How much electricity is required in Coulomb for the oxidation of 1 mole of H2O to O2, 1 mole of FeO to Fe2O3? We'll have to calculate the. ये देखिए, पहले वाला कर दे क्या? कोई कर दे हम? Yeah, both of this is doable. Tell me, guys. Should I do one of them? Yes, no, कुछ तो बोल दो भाई। Yes, sir. ठीक है, लेकिन यूसुफ, were you present in the last lecture? No, sir, but I watched the recordings. सैटरडे वाला देखा आपने? No, sir. Yeah, Saturday, yeah. ठीक है। So first question is, we have H2O, 2O2. Now, for this, you look at the product and see that what product we are having. We are having O2, right? So the change in oxidation state आप देखेंगे oxygen का, because there is only one element here. So you will look at the change in oxidation state of oxygen only. Now, what is the oxidation state of oxygen in H2O? Any idea? Oxidation state of oxygen in water molecule? Yes, Yusuf? -2. Very good. Huh? And O2 on its, मतलब जब अपने साथ ही bonded होगा, then it will be 0. Okay, it will be 0. So what is the change in oxidation state? Delta OS is equal to 2. The number of moles that they are asking, it is equal to 1. है ना? So आपके पास यहाँ पे हाँ, आपके पास यहाँ पे क्या चार्ज ना, चार्ज इन कूलम विल बी इक्वल टू 2 into 1 into 96500 coulombs. Okay, fine, Deborah, not a problem. अगले वाले में देखिए, दूसरा वाला है गोइंग फ्रॉम FeO टू Fe2O3। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि कंबाइंड स्टेट में ऑक्सीजन जो होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -2 रहती है। इन कंबाइंड स्टेट ऑक्सीजन इज ऑलवेज हैविंग द ऑक्सीडेशन स्टेट -2। इन दिस केस यू विल कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe। O2 का है -2, तो Fe का हो जाएगा +2। Here we will take for Fe, there are 2 Fe, so we'll take 2x plus 3 into -2, it is equal to 0 because overall charge यहाँ पे नहीं है। And then we can calculate 2x, it will be equal to 3 to the 6, उधर जाएगा तो +6, and x will be equal to how much? X will be equal to +3. So here the oxidation state of iron is +3. अब देखिए +2 से +3 में क्या change in oxidation state है, and then moles जो आपको दिया वो उसको आप लिख लीजिए, and then calculate the coulombs. Send the answer on Zoom chat.
Send the answers on the Zoom chat, please. Yeah, correct. So here it is going to be something different, right? Wait a second. Fia and Rachita, the answer is for which question? First or second one? Fia and Rachita? Question, sir. Second कैसे? Delta OS कितना आया बताइए? What is the delta OS? It's 3. कैसे 3 होगा? +2 से +3 में 1 होगा ना? -2 से 0 में delta OS will be 2. +2 से +3 में it will be 1 only ना? एक ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज हो रहा है, करेक्ट? बोलो भाई. पिया एंड रचिता, ठीक है? ठीक कीजिए जरा. नंबर ऑफ मोल्स तो यहाँ पे सीधा क्या आ जाएगा? 96500 कूलम्स, ठीक है? हियर इट विल बी 965 इज उसमें 2 मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आता है. चलिए, वी आर गोइंग टू लुक एट अनदर क्वेश्चन नाउ. Sir, can you explain me like when you will like how to find the oxidation state? Because in first you wrote 2, second we just subtracted it, sir. Here also it is not change. आपको कितना जंप मारना पड़ेगा -2 से 0 तक जाने के लिए? 2. या 2 जंप. और +2 से +3 जाने के लिए कितना जंप मारना पड़ेगा? 1. गॉट इट? Okay, sir. है ना? ठीक है. सो राइट अनदर क्वेश्चन. इसको थोड़ा देख लीजिए, यहाँ समझाते हैं आप लोगों को, ठीक है? The solution of nickel nitrate is electrolyzed between platinum electrodes. Using current of 5 amperes. Using current of 5 amperes for 20 minutes, what mass of nickel is deposited in the cathode? So for this, आपको सबसे पहले reaction identify करना है. You have to identify the reaction. Nickel nitrate, है ना? Using इतना. What mass of nickel is deposited? That means from nickel nitrate we are getting nickel. Okay. So what will happen? NiNO3 whole twice is going to give you nickel. अब यहाँ पे आपको देखना है निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है. Any idea guys what will be the oxidation state of nickel? What would be the oxidation state of nickel? Sorry, chat में बताएं, chat में. Oxidation state of nickel. No one. What is the charge on nitrate ion? Nitrate ion पे क्या चार्ज होता है? नाइट्रेट पे, रजिता इज करेक्ट. नाइट्रेट पे क्या चार्ज होता है? यार ये चीजें ना आप लोग को पता होनी चाहिए, ठीक है ना? कि नाइट्रेट पे क्या चार्ज होता है, सल्फेट पे क्या होता है, फॉस्फेट पे क्या होता है. 9th क्लास की चीजें हैं, आप लोग मेहनत करके थोड़ा सा याद करो. पॉलीटॉमिक आयंस, दैट से OH नेगेटिव होता है, SO4 2 नेगेटिव होता है, राइट? PO4 में 3 नेगेटिव होता है. उसी तरह से NO3 में 1 नेगेटिव होता है, ठीक है? तो यहाँ पे आपके पास 2 NO3 है, तो दोनों में कितना चार्ज होगा? -1 और -1, टोटल कितना हो गया? -2. इसी को बैलेंस करेगा निकल का चार्ज, दैट विल बी इक्वल टू +2. ठीक है, ध्यान दीजिए अब यहाँ पे जरा.
So +2C, and when you have nickel in its elemental state, that means nickel के पास कोई भी नहीं है मौजूद, then it is going to be how much? It is going to be 0. So what is the change in oxidation state, Fia? Fia, what is the It change is in 2, oxidation state? sir. 2. 2. Very good. Correct. बहुत बढ़िया. अब ध्यान देखिए जरा, आपके पास एक चार्ज आता है that is Q is equal to A into S. ठीक है, चार्ज that is Q is equal to A into S. Then we have another thing that is coulombs will be equal to delta OS into moles, right, into 96500. अब इन Sir, दोनों को हम instead of इक्वेट, coulomb, can we write F also? Farad? नहीं, हम इन दोनों का भी इक्वेट करना चाहते हैं ना, ये कूलम और ये कूलम. ठीक है, No. Is there हाँ, any equation like that? हाँ, वो आ रहा है, इक्वेशन आ रहा है इस वजह से. ठीक है, सो वी Okay. कैन इक्वेट बोथ ऑफ दीज थिंग्स, राइट. तो आपके पास आ जाएगा दैट यू विल हैव डेल्टा ओएस इनटू मोल्स इनटू 96500 will be equal to ampere into seconds. सही है. अब यहाँ पे देखिए, मोल्स को हम क्या लिख सकते हैं? मोल्स will be equal to ampere into seconds divided by change in oxidation state multiplied by 96500. क्लियर है गाइस? हाँ जी, बताएं. ठीक है, अब मोल्स का आप क्या लिख सकते हैं? मोल इज मास डिवाइड बाय मोलर मास. So this will be equal to A into S divided by delta OS into 96500. Now the mass deposited will be equal to ampere into seconds into molar mass divided by change in oxidation state multiplied by 96500. Is this clear? Yes or no? Please tell me, guys. Yes. ठीक है, चलिए. Yes. आपके पास देखिए, ध्यान से देखिएगा, you have ampere 20 मिनट से इसको आपको सेकंड्स में कन्वर्ट करना है. समझ मेरी बात? बोले भाई. Yes, sir. ठीक है, अब ध्यान दीजिए, और निकल का मोलर मास दे देते हैं आपको. Sir, can you explain me that step after moles is equal to ampere into second divided by, after that step you wrote, right? Mass by हाँ. mass percentage, that one. परसेंटेज कहाँ है? Mass by molar mass. तो मोल्स को क्या लिख सकते हैं? मास बाय मोलर मास लिख सकते हैं ना. मोल्स इज Yes. इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास. इसके बाद वाला स्टेप, फिर ये मोलर मास उधर जाएगा इक्वेशन के, तो कहाँ चला जाएगा? यहाँ डिवीजन में इक्वेशन की उस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा. करेक्ट. तो हम लोग क्या मिल Yes. जाएगा? द मास डिपॉजिटेड. गॉट इट? Okay, sir. ठीक है, सो मोलर मास ऑफ निकल इज 58.5. सो आपके पास एम्पेयर है, आपके पास सेकंड्स कन्वर्ट कर लेंगे 20 मिनट्स से. मोलर मास है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हमने निकाल लिया, 96500 भी आपके पास है. प्लीज कैलकुलेट द मास, सेंड योर आंसर इन द जूम चैट.
ओके यूसुफ, विल सी। आपने कैलकुलेटर से कर लिया क्या? No, sir. देखो जी। Is it correct? थिंक सो, थिंक सो। सफिया का अलग आंसर आ रहा है। आई डोंट नो नाउ। डेल्टा वर्स कितना लिया था आपने? एम्पियर कितना आ जाएगा भाई? 5 इंटू 6 दूनी 12, 12 और 2 जीरो, 1200। मोलर मास है आपके पास 58.5। ये आया आपके पास न्यूमरेटर में 351000 डिवाइड बाई डेल्टा ओएस है आपके पास कितना? 2 इंटू 96500। ये आया आपके पास 193 और 000। आई थिंक आपका सही है यूसुफ। I Sir, think that is molar correct. mass is 58.5 only. 58.5 ही तो होता है निकल का। 5 या 7 होगा, ऐसे कुछ होगा। Sir, Sir, but got it, sir. The denominator calculation I did wrong. अच्छा sir, आपको but डिनोट, I checked in Google, it is 182.7. अरे यार, आपने NiNO3 का चेक किया ना? Yeah. निकल का देखना है, निकल का। निकल बन रहा है ना प्रोडक्ट आपका, इसका मास आ रहा है ना? हाँ, Yes. उसी के मोल्स भी रहेंगे। नहीं रजिता, आपका भी गलत आ रहा है। 17 नहीं होगा भाई, देखो ये 3 जीरो तो कट जाएंगे एक दूसरे से। 19 का ऑलमोस्ट डबल से थोड़ा कम है, राइट? अगर 350 रहता तो यहाँ पे 190 रहता है, ऐसा तो अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं ना। तो 35/19 करके देखिए कितना आएगा। 35 डिवाइड बाई 9 अप्रोक्सीमेशन है, इट इज 1.8 आ रहा है। What is the approximation? नहीं समझ में आ रही है आपकी आवाज, थोड़ा जोर बोलें प्लीज। Is it important to do the approximation? इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, इट इज फास्ट टू डू द अप्रोक्सीमेशन। आपका गलत आ रहा है आंसर। Is that so? Okay, sure. हाँ, आपको दिख रहा है ना? देखिए, हम अप्रोक्सीमेशन इस वजह से करते हैं ना कि आपको एटलीस्ट एट अ बॉल पार्क यू वुड नो लाइक कि कितना आंसर आना चाहिए। कि देखिए यहाँ पे आपने दिया 17 आंसर है ना? बट आंसर जो आ रहा है 1.8 आ रहा है। यू कैन सी दैट हैपनिंग, यस और नो? वो देखिए आप। ये गलत है आंसर। कैन यू गाइस सी दिस कैलकुलेशन 351 बाई, ये आपको दिखा कि नहीं दिखा? अरे Yes, यार sir. कोई तो जवाब नहीं दिया। हाँ तो फिर ये आपका न्यूमरेटर में इतना आया था और डिनोमिनेटर में इतना आया होगा। Oh, yes, sir. But then the calculation, I think maybe the division is wrong. ठीक है, तो 1.8 होगा, ऑलमोस्ट डबल। Sir, shall I send you the calculation part? नहीं नहीं, हम मैथ के टीचर नहीं, हम कैलकुलेशन नहीं देखेंगे। हाँ पता है, मतलब वो डर से हम नहीं देखते हैं कि ऐसा ऐसा कैलकुलेशन किया रहता है बच्चों ने, मेरा हार्ट फेल हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? लाइसेंस वाइसेंस, वो इंश्योरेंस भी हम नहीं करवा के रखें, ठीक है? तो वो हमको नहीं चाहिए, ठीक है पिया? आई होप यू विल अंडरस्टैंड। Sir, it is 1200 seconds, right? हाँ जी बिल्कुल सही।
चलिए ये प्लग इन कर दें हम सारे वैल्यूज, आप देख लो 5 इंटू 1200 इंटू 58.5 डिवाइड बाई 2 इंटू 96500। Yeah, this 0 and that 0 gets cancelled. ठीक है, उसके बाद 5 into 58.5 is 292.5. 12 इंटू 292 292.5 होता है ये। Yes, पाँच sir. बचे 150, 150 8 और 5 और 8 बचे 40, 40 हो गया और 5, ठीक है, सही है। आगे बताएं। Divided by 2 into 965. 2 इंटू 9 6 कितना हो गया? 1930। Okay, sir, understood. I missed the 12. हाँ बहुत बढ़िया है ना। देखो बताओ, हमको हार्ट फील नहीं होता? Yes, sir. Yes, sir. Understood. यस सर, देखो यस सर भी बोल रही है ये है। Yes, sir. चलिए कीजिए कीजिए, जल्दी कीजिए। सही सही है। Sir, is मीर 1.7 acceptable? हाँ 1.7 इज एक्सेप्टेबल, कंप्लीटली एक्सेप्टेबल। Well, okay, I meant 1.7. ऐसे बोर्ड्स के टीचर्स नहीं Yes, समझेंगे कि व्हाट यूर मीनिंग। ठीक yes, है, sir. फाइन, दैट्स फाइन। डेबोरा यार तुम कैलकुलेटर मत यूज किया करो, और अगर कैलकुलेटर यूज किया करो थोड़ा तो मतलब चालाकी दिखाओ। आप अगर आंसर ऐसे लिखिएगा डेबोरा 1.81865 ग्राम, तो हम क्या समझेंगे? टेल मी डेबोरा, ये आपने खुद से किया है या कैलकुलेटर से किया है? यस डेबोरा स्पीक। माई से इतना लंबा क्यों किया अगर आपने? भाई माई से अगर आप इतने नादानी से बोल रहे हैं, माई से तो हम बिलीव कर रहे हैं आपको, ठीक है, बट इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्लियर गाइस, यू हैव टू Sir, गो। got the answer. गॉट द आंसर, कांग्रेचुलेशंस किया। देखिए, you have to do like two non-zero digits. This is a rule that I came up with अपने आप से ही ना, 2 non-zero digit after decimal point। ठीक है, इतना कैलकुलेट करना है आपको। इतना जब आप कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद फिर एक और डेसिमल पॉइंट कम करके अप्रोक्स वो आंसर लिखिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल रजिता अगर सही से कैलकुलेट करेंगे ना, तो उनका आंसर आएगा 1.79। तो 2 डेसिमल पॉइंट आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, आप लिखिएगा कितना? 1.8 लिखिएगा। बात समझ में आ रही है रजिता? Yes, sir. Yes. ठीक है ना, 1.8 लिखिएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे 1.8 कर दिया इस वजह से क्योंकि बहुत नजदीक है ये, है ना, दैट इज वाई। खैर, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन। Just give me a second. I'm finding the question. Conductance of electrolytic solution. One second here. चलिए ये सवाल कीजिए जरा। आप लोग ना देखिए, कैलकुलेशन ठीक रहेगा आप लोगों का, तो मतलब कंसेप्चुअली कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप देखिए, यू हैव सॉल्यूशन ऑफ CuSO4। सबसे पहले रिएक्शन लिखना, डेल्टा ओएच निकाल लीजिएगा। इज इलेक्ट्रोलाइज फॉर 10 मिनट्स, इसको सेकंड में कन्वर्ट कीजिएगा विद अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर। व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड? तो कॉपर का मास आप लोग ले लीजिए कितना? 63.5 होता है ना। सो टेक दैट मास, ये आपको गिवन रहेगा, ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 63.5। ठीक है,
Sir, will the oxidation state of CO be 1? नो, SO4 पे क्या चार्ज होता है बताइए? व्हाट इज द चार्ज ऑन 2. SO4? हाँ, Negative. 2 नेगेटिव। अच्छा चलो यार, एक सेकंड रुक जाओ यार, रुक जाओ, तुम लोग का हम फंडा ही कह रहे होते हैं भाई। 9th-10th क्लास की फीस दे के जाइएगा आप लोग, क्योंकि 9th-10th क्लास पढ़ाने वाले हैं हम लोग। ठीक है, देखो देखो, छोड़ो यार सवाल छोड़ो। जिन लोगों को दिक्कत होती है ना, सब लोग देख लें एक बार, सभी को दिक्कत हो रही होगी। सुनो भाई, एकदम बिल्कुल 9th क्लास के बच्चों की तरह याद करो, कुछ चीजें याद कीजिए। ऑक्सीजन चार्ज लेके आता है 2, कितने चार्ज लेके आता है ऑक्सीजन? 2. -2, -2 है ना ऑप्शन, है ना ऑप्शन -2। ठीक है, हम कितना चार्ज लेके आता है? -2 लेके आता है। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद सुनो, ये आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद NO3 SO4 और क्या जाएगा आपके पास? PO4 CO3। ऑल ऑफ दीज आर पॉलीएटॉमिक आयंस। ये सारे क्या है? पॉलीएटॉमिक आयंस है, इनमें हमको चार्ज निकालना है। ठीक है ना? और सब में देखिएगा ऑक्सीजन ही रहता है जनरली। क्या रहता है? ऑक्सीजन रहता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखो, नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना पता है आप लोगों को कि नहीं पता? वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन नहीं पता। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर, नाइट्रोजन के एटॉमिक Sir, नंबर 5. 4. क्या ही बोले भाई, हम टूट गया मैं तो, 5, sir. टूट गया। क्या 5 होता सिया? ये बताओ ना यार, 2 सवाल पूछ दिए तुमने। क्या 5 होता सिया? Electrons, valence electrons. वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सही है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास 5 प्लस Correct. 3 ऑक्सीजन चार्ज लेके आया -2। क्या हो गया बताइए, कितना हो जाएगा ओवरऑल चार्ज? 5 प्लस प्लस नहीं, -6 हो जाएगा। बोलो भाई, अरे बोलो यार, -1. क्या हो गया? -1। तो NO3 पे क्या चार्ज होगा? -1 होगा। ठीक है, चलो आ जाओ इधर। सल्फर बताओ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सल्फर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सल्फर, बोलो रे भाई। सल्फर, सल्फर किसके नीचे आता है? ऑक्सीजन के नीचे आता है, कार्बन के नीचे आता है, नाइट्रोजन के नीचे आता है, किसके नीचे आता है बताइए? अरे बोलो, ये भी नहीं पता? Sir, the charge is -2, right? अरे वो छोड़ो यार, चार्ज छोड़ो यार, समझो ना, प्रोसेस तो समझो। सल्फर पे वैलेंसी क्या है? नहीं पता किसी को। उससे टीपू याद करो यार। 6. भाई साहब, ठीक है ठीक है, बड़ा जोर से बोला यार। किसने, कौन था ये? अलीजा थी क्या? हाँ, अलीजा आई है। हाथे साथ आप ची करें बिल्कुल। इधर आई है, सी गिर गई। 4 इंटू -2 करेंगे, करेक्ट है ना? +4, 4 क्यों? 4 ऑक्सीजन है, -2 क्यों? ऑक्सीजन -2 चार्ज लेके आया, तो 6 -2 विल बी इक्वल टू, माय बैड, बहुत बहुत -8 विल बी इक्वल टू -2। ठीक है, इधर आ जाओ भाई। फास्फोरस पे बताइए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 7. 5. 9 नहीं रे भाई, 7 9। नाइट्रोजन के नीचे आता है, 5 होता है इसमें भी। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार। नाना पाटेकर, नाइट्रोजन फास्फोरस प्लस 4 इंटू -2, क्या हो गया बताइए? 5 -8 इज इक्वल टू कितना चार्ज? -3। -3. ठीक है, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3। ठीक है, CO3 का निकालो भाई तुम लोग। कार्बन का तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, कितने 4. वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ कीजिए फिर। CO3 पे क्या आ जाएगा? What would be the charge on CO3? ठीक है, बाकी देखिए आप लोग का -2 आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए लाइए फीस लाइए आप लोग। 9th और 10th क्लास दोनों का फीस लाइए। तो देखो, इसको बोलते हैं नाइट्रेट, क्या बोलते हैं इसको? नाइट्रेट। इसको क्या बोलते हैं? सल्फेट। क्या बोलते हैं? सल्फेट। इसको बोलते हैं Phosphate. फॉस्फेट। इसको क्या बोलते हैं? Carbonate. कार्बोनेट। कार्बोनेट। और समझ, और सुनना है? समझो समझो समझो। नाइट्रेट से अगर आप नाइट्राइट करते हैं, क्या करते हैं? नाइट राइट। तो आपको क्या करना है? बस एक ऑक्सीजन हटाना, बाकी कुछ नहीं। तो नाइट्रेट जब आप नाइट्राइट करेंगे, चार्ज और कुछ नहीं लिखना आपको, वो सब भूल जाइए। 8 के लिए
यू हैव ऑल दिस फॉर्मूला। उसके बाद आपके पास ट्रिक क्या, नाइट्राइट क्या हो जाएगा, NO2 नेगेटिव सल्फाइड। बोलो रे भाई क्या करेंगे आप? SO3 नेगेटिव, SO3 टू ने नेगेटिव। हाँ, टू नेगेटिव, बाकी सब सेम रहेगा। SO3 Yes, 2 sir. नेगेटिव सल्फाइड, SO3 2 नेगेटिव। उसके बाद क्या आएगा बताओ, बोलो भाई। Phosphate. Phosphide. फॉस्फाइड, हाँ फॉस्फाइड। दिस विल बी PO3 PO3 3 minus 3. हाँ 3 नेगेटिव। कार्बोनाइट होता नहीं है, ठीक है, फॉस्फाइड ही तक होता है। याद रहेगा भाई ये सब, ठीक है। देखिए इस वजह से हमने सिखा दिया आप लोगों को, कहीं आप देखिए चार्ज अगर भूल जाए आप लोग तो क्या करना है उसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अब जाइए आप लोग, अब बताइए भाई, CuSO4, तो SO4 पे कितना चार्ज है, 2 माइनस, है ना, -2 चार्ज है ना SO4 पे। 2 minus Yes, sir. तो कॉपर पे कितना चार्ज हो जाएगा, +2. +2 ना, बैलेंस करके 0 कर देगा ये, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट कीजिए भाई, आप लोग आंसर बताइए। I'm waiting for answers, guys. सेकंड्स में प्लीज कन्वर्ट कर लीजिएगा, है ना, ऐसे मत छोड़िएगा, है ना, प्लीज कन्वर्ट इट इनटू सेकंड्स। Yes, Sophia, let us see. Yeah, very good, Sophia, correct answer.
बाकी किसी का आंसर नहीं आ रहा है, जल्दी भेजिए आंसर्स। रजता नहीं, काफी मतलब बहुत अप्रोक्सीमेशन, कुछ अप्रोक्सीमेशन किया है आपने रजता? Yes. कैन यू शो मी व्हाटएवर यू हैव डन? नो फिया, बहुत गलत है फिया, बहुत ज्यादा गलत है। कैसे कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं आप? टेल मी फिया, क्या होता है फॉर्मूला? मास डिपॉजिटेड इज इक्वल टू Ampere into second इनटू molar mass divided by oxidation state into 96500. चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू 96500। बताओ चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया? 0. जीरो कैसे आया भाई? चेंज इन जीरो कैसे आया यार? कॉपर आपके पास क्या है? कॉपर CuSO4 पे है, एंड व्हाट इज द रिएक्शन CuSO4 से? It is 2, sir. क्या 2 है? Change in oxidation state. हाँ ठीक है, तो 2 लिया आपने या 0 ले लिया था आपने? I wrote 0, sir. I'll do it again, sir. हाँ, ठीक है। यस, वेरी गुड मीत, करेक्ट है, बहुत बढ़िया। यस अलीजा, करेक्ट, वेरी गुड। हाँ बस ग्राम्स लिख लीजिए डेबोरा, अदरवाइज इट इज फाइन। ठीक है, ग्राम्स में आएगा आंसर। यार ये डिवीजन कैसे किया आपने, हमको समझ ही नहीं आ रहा है रजिता। Yes, so that's why I was hesitant to send it. अच्छा, क्या कोई नया तरीका है क्या डिवीजन का? No, sir. It's just division. क्रिस्टल डिवीजन होनी है साहब? अच्छा ठीक है। यार वहाँ पे 1610 भी लिखा है आपने, वो हमको समझ में नहीं आ रहा, क्या है 1610? No, no, no. It's not 1610. It's separate number. It's 1610. You know, borrowing something. अच्छा बोरो किया आपने, अच्छा। Yes, sir. Yes, sir. यू नो बोरिंग, बोरिंग पता है, लेकिन बोरिंग अब लिखते कहाँ है, मतलब वो तो बोरो कर लेते हैं सिर्फ। Yes, sir. No, sir. Yes. हाँ, excuse me, तो या एक चीज आपको समझ में आई, न्यूमरेटर बड़ा है या डिनोमिनेटर बड़ा है, ये बताओ आप पहले। आपके पास 57.15 डिवाइड बाई 1930 आया है, राइट रचिता? एम आई ऑडिबल? Yes. Yes, yes, sir. ठीक है, तो क्या बड़ा है, न्यूमरेटर बड़ा है या डिनोमिनेटर बड़ा है आपका? Numerator. न्यूमरेटर बड़ा है? अरे यार 57 बड़ा है या 1930 बड़ा है? Yes, sorry. Yes, the denominator is bigger. ठीक है, नहीं फिर भी लेकिन ना कुछ तो गलती है आपके इसमें। आई थिंक इट विल बी 571.5 होगा शायद से। But sir, didn't I got right? Why did you ask me if the numerator was? क्योंकि अगर न्यूमरेटर छोटा, अच्छा वो हम बता रहे हैं आपको, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है ना, अगर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से तो आंसर होता है, आंसर इज ग्रेटर देन 1। आंसर जो होगा इट विल बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, और न्यूमरेटर जब छोटा होगा डिनोमिनेटर से तो आंसर 0 पॉइंट समथिंग में आएगा, आंसर विल बी लेस देन 1। नहीं बात समझ नहीं No, किया, sir. थोड़ा सा Yes. गलती है ना? तो आपका 2 आंसर तो हो ही नहीं सकता, इट विल बी 0 पॉइंट समथिंग।
Sir, the answer I told you was 0.20. हाँ, लेकिन उसके बाद कुछ और कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, मतलब थोड़ा सा दूर है, 0.29 आंसर है गाइस। The answer that is there, it is 0.29. 0.29 ग्राम्स। आपको एक और डेसिमल पॉइंट करना पड़ेगा। आप सी यू अंडरस्टैंड ना कि मार्क्स कट जाएंगे, आपने एक डेसिमल पॉइंट तक किया है ना, फिर भी आपका ना वो कैलकुलेशन सही नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है आपके इसमें। इफ आई डिवाइड 57.15 डिवाइड बाई 1930, आंसर आएगा 0.029। ठीक है, अगर आपने इसी को डिवाइड किया, दिस इज योर फाइनल आंसर राइट, फ्रैक्शन में। Yes, sir. Yes. हाँ, आप फिर भी सही नहीं, 57.15 डिवाइड बाई 1930 इज गोइंग टू बी समथिंग एल्स। 57.15 इट विल बी 0.029, तो यहाँ पे भी कुछ तो आपने गलती कर। ठीक है यार, फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, प्लीज इसमें गलती करके आप लोग प्लीज अपने मार्क्स मत कटवाइए कैलकुलेशन मिस्टेक करके। ठीक है, कैलकुलेशन में तो मार्क्स नहीं आना चाहिए कम से कम, इट विल बी 0.29 जिन लोगों ने नहीं किया अभी तक। ठीक है, बाकी लोग क्या, सभी लोग नया सवाल लिखे। 0.29 ग्राम है, वो आपके पास फॉर्मूला है, कैलकुलेशन में कहाँ मिस्टेक हो रही है, आप लोग इतने बड़े हो चुके हैं कि वो चीज आप आइडेंटिफाई खुद से कर लें। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट दिस क्वेश्चन आराम से, राइट दिस क्वेश्चन एंड रेज योर हैंड वंस यू आर डन राइटिंग। Raise your hand once you're done writing the question. Sir, last question's answer is 0.29. हाँ जी, 0.29 ग्राम। Yes, sir. I hope you guys are done writing the question. ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। सो दिस क्वेश्चन इज सीम्स डिफिकल्ट, बहुत लंबा वगैरह वगैरह वगैरह, आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे लोड लेने का नहीं है बस, है ना। सिंपल सी बात रखते हैं यहाँ पे, या थ्री इलेक्ट्रोलाइटिस ए बी सी कंडेंस सॉल्यूशन, ठीक है, ओके फाइन। A steady current of 1.5 ampere, a steady current of, ये हमारे काम का चीज है भाई, ampere it is equal to 1.5 ampere was passed through them, all of these solutions until 1.45 gram of silver. You have been given the mass of silver, it is equal to how much? 1.45 grams. Deposited at the cathode of cell B. How long did the current flow? How long? क्या मतलब, क्या पूछ रहा है? टाइम पूछ रहा है। ठीक है, बाद में पूछ रहा है व्हाट मास ऑफ कॉपर एंड जिंक वेयर डिपॉजिटेड। अब देखिए, mass is equal to A into S into molar mass divided by delta OS into 96500। हमारे पास ये फॉर्मूला तो है, बट देखिए मास किसका निकाला है इन्होंने, मास दिया है सिल्वर का, मास ऑफ सिल्वर। ठीक है, सो फॉर सिल्वर व्हाट रिएक्शन विल हैपन, AgNO3
is going to get converted into Ag. Change in oxidation state. What is the oxidation state of Ag? Tell me, guys. Oxidation state of Ag. Oxidation state of Ag. अरे बोलो भाई. +2 sir. Oxidation. क्या है +2 रे भाई? NO3 में -1 होता है ना. एक ही तो NO3 है. +1 होगा यहाँ पे. डेल्टा OS will be equal to 1. +1 से 0 क्या हो गया? एक बार देखा आपने, वो यू जंप वंस, यू डेल्टा OS is equal to 1. ठीक है, इतना कर लिया. मोलर मास नहीं थी, मोलर मास आपको मिल जाएगा. डोंट वरी अबाउट. आई थिंक सिल्वर का 108.9 कुछ होता है शायद. जस्ट गिव मी अ सेकंड, विल कंफर्म दिस. सिल्वर इज 108. या सिल्वर इज 108 है ना. नाउ दे आर आस्किंग टाइम. ये पूछा आपसे, टाइम पूछा है ना. तो टाइम क्या हो जाएगा? S विल बी इक्वल टू मास into delta OS into 96500 divided by ampere into molar mass. Okay, so mass is given as how much? 1.45 into change in oxidation state is 1 into 96500 divided by ampere is how much? 1.5 ampere is passing into molar mass is 108. ये कैलकुलेट कीजिएगा, then you will get an answer. ठीक है, जो आंसर रहेगा किसमें रहेगा? सेकंड्स में रहेगा. ओके, इट विल बी इन सेकंड्स. ट्राई करेंगे आपको कैलकुलेट करने का. अराउंड 900 सेकंड्स आना चाहिए. 8 मतलब 800 समथिंग नियर टू, मतलब 900 होना चाहिए. Actually, you will get this answer as 863.7 seconds. ठीक है. यस सफिया, करेक्ट. अब आपके पास टाइम आ गया है. ठीक है. So from here you can calculate the mass of other thing also. Okay. तो mass of जो कॉपर आएगा, मास ऑफ जिंक आ गया, सॉरी मास ऑफ क्या है? Ag आ गया. सॉरी, टाइम पर Ag आ गया, मास ऑफ Ag. ठीक है. मास ऑफ कॉपर जो होगा, दिस विल बी इक्वल टू मास ऑफ कॉपर में सिंपली हम आपको बता रहे क्या करना पड़ेगा आपको. व्हाट यू विल हैव टू डू इज यू विल मल्टीप्लाई 63.5 into 1.45 divided by 2 into 108. ठीक है, 2 into 108. Now please यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए इस बात को. 1.45 upon 108 is going to give you the number of moles of Ag या फिर the number of moles of electron that we are having. ठीक है, Ag में क्योंकि +1 हो रहा है ना, तो एक ही आपको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो that will वो आपको मिल जाएगा. डिवाइड बाई 2 बिकॉज ऑक्सीडेशन स्टेट में जो चेंज आएगा कॉपर से, CuSO4 है आपके पास, राइट. सो इन CuSO4 इट इज +2, और कॉपर जो होता है किसमें होता है? कॉपर इज 0. सो द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर दिस केस विल बी 2. ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा मास ऑफ कॉपर, एंड 63.5 इज द मोलर मास ऑफ कॉपर. उसी तरह से अगर हम बात करें मास ऑफ जिंक की, so this will be equal to zinc का मास होता है 65 into 1.45 divided by
2 because oxidation state of Zn is changing by 2 into 108. ठीक है, इसको आप निकालिए, आई विल गेट द मास ऑफ, इसको लिख के हम समझाते हैं ये फॉर्मूला आया कहां से, हम समझा देते हैं आप, ठीक है, बट यू राइट दिस डाउन. ठीक है, आई होप यू हैव रिटन दिस डाउन. ध्यान सुनिएगा, देखिए we have the formula कि मास जो होता है that is equal to A into S into the molar mass divided by change in oxidation state into 96500. जब आपके पास please see, when you have cells which are in series, जब ये सीरीज में होगा so all of them will be getting 1.5 ampere of current. किसी में भी करंट चेंज नहीं होगा, सो करंट इज कांस्टेंट. एंड जब बैटरी चलेगी तो वो तीनों के लिए सेम टाइम के लिए चलेगी, तो सेकंड भी क्या है, कांस्टेंट है. एंड 96500 इज आल्सो कांस्टेंट. अब ध्यान से देखिए जरा, आई कैन राइट दिस इक्वेशन इस तरह से, A into S डिवाइड बाय 96500, दिस विल बी इक्वल टू, अब किसके बराबर हो जाएगा, मास इनटू चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट divided by the molar mass divided by the molar mass. अब ध्यान सुनिए, दिस इक्वेशन आपके पास ये जो है, एम्पियर कांस्टेंट है, सेकंड कांस्टेंट है, 96500 कांस्टेंट है. अब एक बात बताइए, इस केस में हम Ag के लिए कुछ रखे, Zn के लिए रखे या कॉपर के लिए रखे, ये वैल्यू तो सेम ही रहेगी ना, बोलो भाई. नो मैटर वेदर वी आर कीपिंग द वैल्यूज इन द RHS, राइट हैंड साइड में हम मास सोच रहे हैं, कॉपर का रखिए, जिंक का रखिए, या फिर आप सिल्वर का रखिए, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट किसी का भी रख लीजिए आप, ठीक है. दिस थिंग विल बी कांस्टेंट, राइट, A into S divided by 96500. yes or no, please tell me. Yes, sir. That means I can equate, हम ये कर सकते हैं कि mass into delta OS divided by molar mass of Ag will be equal to mass into oxidation, change in oxidation state of copper will be equal to mass into oxidation state and molar mass of zinc. क्योंकि इन सब की वैल्यू एक ही चीज आएगी, दैट इज एम्पियर इनटू सेकंड्स डिवाइडेड बाय 96500. बात समझ में आई आप लोग को, ये सब प्लीज चल नहीं, अरे बोलो भाई. Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमने क्या इक्वेट किया. सबसे पहले कॉपर वाले के लिए क्या करेंगे हम, समझिए यहाँ पे आपके पास व्हाट आर द थिंग्स दैट वी हैव. Ag का तो सारा कुछ है हमारे पास, राइट. आई हैव द मास ऑफ Ag डिपॉजिटेड, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, मोलर मास. और कॉपर की जब बात करें तो मास हमारे पास नहीं है, ऑक्सीडेशन स्टेट रिएक्शन से मिल जाएगा, मोलर मास आपको गिवन होगा. तो मास जो आ जाएगा, मास ऑफ कॉपर विल बी इक्वल टू, देखिएगा क्या होगा, मास इनटू डेल्टा OS डिवाइड बाय मोलर मास. ये सारी चीज किसकी, Ag की, मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय ये मोलर मास ऊपर आएगा, डिवाइड बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, मास ऑफ कॉपर. बताइए मास ऑफ Ag डिपॉजिट कितना था, 1.45, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था, 1, डिवाइड बाय 108 इनटू मोलर मास, ये किसका आएगा, कॉपर का आएगा, ठीक है, दिस फॉर कॉपर. मोलर मास ऑफ कॉपर इज 63.5, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर कॉपर इज 2. तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, देखिए 1.45 into 63.5, this is divided by 108, this is divided by 2. क्या सेम चीज हमने लिखाई थी यहाँ पे, देखिए 63.5 by 2, 1.45 divided by 108. Got it guys? Someone please tell me. अरे भाई बताओ, समझ में आया ना, एक बार देखेंगे तो और फिर समझ में आ जाएगा. देख लीजिए एक बार, राइट टू राइट दिस डाउन.
बताइए, समझ में आया ना सबको? देखिए एक बार लिख के देखिए, समझ में आया? अच्छा, ये आंसर दे रही हैं आप। ठीक है यार, कैलकुलेट करना पड़ेगा बस। गिव मी अ सेकंड। दिस इज फॉर व्हाट? कॉपर ना? या Yes, sir. ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। Sir, we have to calculate Zeton also. यार पे थोड़ा सा आई थिंक गलत आ रहा है आपका आंसर। एनीवन एल्स गॉट फॉर कॉपर? किसी और को कॉपर का मास मिला? आई एम गेटिंग इट एज 0.4 समथिंग। Sir, but when you divide 1.45 by 108, it is 0.01. And 63.5 by 2, you will get 31.75. When you multiply that, I got that answer, sir. ठीक है, 1.45 डिवाइड बाई 108 ना? Yes, sir. ये आ रहा है 0.13। I got 0.01. हमने यहाँ 0. मेरी बात 0.013 आ रहा है। 0.01. 0.013 3 भी लेके चलिए, तभी जाकर सही आंसर आएगा। Okay, sir. But you said 2 digits are enough. हाँ, हमने कहा था क्या? पढ़ो जरा, पढ़ो। 2 non-zero digit after decimal. नॉन जीरो। Okay, sir. थोड़ी बहुत मेहनत की हमने इस रूल के बारे में। 2 नॉन जीरो डिजिट, बिकॉज रिपीटेडली ना लाइक एक सवाल आता है बच्चों के साथ कि सर कितना कैलकुलेट, मतलब कहाँ तक डेसिमल पॉइंट लेके जाए, हम डिवाइड कर रहे हैं जब। तो उस टाइम थोड़ा हमने एनालाइज किया कि जो एरर होता है वो कितना एरर चलेगा, तो समझ में आया कि 2 नॉन जीरो डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट इज अ सेफ वे टू गो। 2 बार आपको कम से कम 2 डिजिट तक का डिवीजन करना पड़ेगा, 2 नॉन जीरो डिजिट। Sir, 0.41. हाँ, ये शायद सही आंसर है आपका। ऐसी कुछ आंसर आना चाहिए। 0.42 आ रहा है, जैसे 0.426 इज द कैलकुलेटर वाला आंसर है ना, तो चलेगा 0.41। कोई कोई भी आपको यहाँ पे गलत नहीं करेगा। 0.426 ग्राम इज द आंसर फ्रॉम कैलकुलेटर। आप 0.41 लिखिए, कोई भी आपको गलत नहीं ठहराएगा। ठीक है, 0.41, 0.43, 0.44 तक भी आपका आंसर चलेगा। सी द रूल इन, जब हम एमएससी कर रहे थे ना, तो उस वक्त हमारी एक टीचर थी राधा जयराम, RVJ मैम। शी यूज्ड टू मेक क्वेश्चन पेपर्स फॉर इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड। तो इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड में उन्होंने एक रूल ये बताया था कि 5% का एरर अगर आपके आंसर में है तो वो चलता है। मतलब कि अगर आपका करेक्ट आंसर 100 है तो आपको आंसर चलेंगे 95 से लेके 105 के बीच में। अगर आपका आंसर आ रहा है देन वो उसको करेक्ट मानते हैं। ठीक है, तो यही रूल हमने भी अपनाया हुआ है। सीबीएसई ने ऐसा कुछ तो बोला हुआ नहीं कि इतना परसेंट एरर चलता है, लेकिन इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड का ये रूल है दैट 5% ऑफ एरर इज फाइन, उतना कैलकुलेशन एरर चलता है। बट एक्सट्रीम क्या है, ऐसा नहीं कि यार 2 into 10 करना है, इसमें कोई मिस्टेक कर रहा है तो वो कट जाएगा फिर आंसर, है ना, ऐसे कैलकुलेशंस में नहीं। हाँ, बट इफ यहाँ एक चीज निकालना है, फिर उससे दूसरी चीज निकालनी है, फिर उससे तीसरी चीज निकालनी है ना, इस तरह के क्योंकि हमारे साथ यहाँ पे हो रहा है दैट वी आर डूइंग राइट नाउ, तो उस केस में 5% का एरर चलता है। ओके, एंड उसी में लाइक देयर आर मेनी रूल्स इन केमिस्ट्री ओलंपियाड जो मार्किंग के लिए बहुत अच्छा होता है। फॉर एग्जाम्पल, यू विल नॉट बी पेनलाइज डबल फॉर वन मिस्टेक। जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पे, हाँ, Ag का जो मास है
Ag का जो मास है 1.45 दिया हुआ है, आपने इसको गलती से देख लिया 1.54, ठीक है। सो उस केस में यू विल बी ओनली डिडक्टेड हाफ मार्क्स। क्यों? क्योंकि आपने वैल्यू को गलत लिखा है। नाउ इफ यू आर डूइंग ऑल द कैलकुलेशन यूजिंग 1.54 एंड योर फर्दर कैलकुलेशंस आर करेक्ट, तो बाकी मान लीजिए 3 मार्क्स का सवाल था, तो आपने इनिशियली गलत कर दिया, तो बच्चे सोचते कि यार इनिशियली गलत कर दिए हम, तो सारा मेरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा फिर। बट इट इज नॉट दैट द केस। ऐसा होता नहीं है कि आप डेटा को आपने अगर गलत प्लग इन किया है तो आपके हाफ मार्क्स कटेंगे वहां पे, बस उस डेटा के प्लग इन के लिए। आफ्टर दैट दे आर गोइंग टू चेक वेदर योर कैलकुलेशन वगैरह सही है नहीं, तो आपको 2.5 मिलेगा अगर आपने सब कुछ सही से किया है, ठीक है। सो यू विल नॉट बी